Hello everyone, welcome to the MCAM. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous video, we were discussed the assignment of stereochemistry, okay, which is very important for exam point of view. Okay, if you have not watched that video, so you may go to the playlist section of this channel where you find that particular video. Okay, because that particular lecture is very important because this assignment I'll give you which is very important. Okay, now today I am going to discuss some another assignment of stereochemistry which is also important for your concept. Okay, I mean this assignment is build your concept. I mean how to approach the question. Okay, so this assignment is quite easy. All those assignment which is I have previously discussed. Okay, so try to do yourself this assignment. Okay, I cannot give any solution of this assignment, but in the end of the video I will provide you the answer key of this assignment. Okay, so now let's get continue our lecture. So the first question is, which species exhibit plane of symmetry? Okay, four different option is given and we have identified the plane of symmetry. Okay, you all know about the plane of symmetry, so try to do yourself this question. I will give you 10 seconds. Okay, ओके सो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. नाउ लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, so next question is, which of the following is center of symmetry? Okay, so you have also idea about the center of symmetry, so do this question with yourself, है ना. Pause the video and try to do yourself. ओके, सो आई होप आपने सॉल्व किया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following compounds are optically active? Okay, four different types of compound is given and you have identified the optically active compound. And what is optically active? Where absence of improper axis of symmetry. If the compound have absent improper axis of symmetry, plane of symmetry and absence of inversion center, if this all element of symmetry is absent, then molecule is chiral or optically active. Okay, sigma or Sn or I absent. Okay, then molecule is chiral or optically active. Okay, so try to do yourself. ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following compound having plane of symmetry? ओके, सो इसमें भी क्या करना है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री बताना है. सो ट्राई टू डू योर सेल्फ. ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा.
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इन सभी क्वेश्चन का आंसर की मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना. तो वहाँ से आप अपना जो सॉल्व किए हो वो मैच कर लेना कि सही सॉल्व किया है या नहीं किया है. ओके, so the next question is among the following the optically active. Okay, so here you have identified the optically active compound, means absence of plane of symmetry or absence of inversion center or absence of improper axis of symmetry. Okay, so try to do yourself. Okay, I hope you will get the right answer. Okay, now let's move forward to the next question. So the next question is which of the following compound is not optically active? Not optically active, it means optically inactive. Optically inactive. Okay, you identify the optically inactive compounds, and which are optically inactive? Those which have achiral. Okay, I mean they are present of plane of symmetry. Okay, if sigma, Sn or I are present, then it is achiral, and achiral is optically inactive. Okay, so try to do yourself. I hope you will get the right answer. Okay, so now let's move forward to the next question. So the next question is which of the following compound are optically active? Okay, here you also find the optically active compound. Okay, so try to do yourself. I hope you find the right answer. Okay, so now let's move forward to the next question. So the next question is what are the element of symmetry present in the following molecule and which of them is chiral? Okay, so this question is I already discussed in a previous video. Okay, ओके, सो सॉल्यूशन देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं. बाकी मैं एंड में वीडियो के एंड में आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा. ओके, सो ट्राई टू डू योर सेल्फ. Okay, I hope you find the right answer. Now let's move forward to the next question. So the next question is consider. Okay, what is the question? Consider the following statement. Okay, हमें कोई statement दिया गया है. फर्स्ट है if a molecule is non superimposable not on its mirror image, the mirror image must be a different molecule. Okay, and second statement दिया गया है the presence of optical activity always prove that given compound is chiral, but its absence does not prove that compound is chiral. Okay, so this is very simple question, so try to do yourself. आई होप यू फाइंड द राइट आंसर. ओके, सो चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ. थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, है ना. बस आप मैच कीजिएगा कि सही तरीके से आपने बनाया है कि नहीं बनाया है. सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है, इफ़ अ मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल, है ना. कोई मॉलिक्यूल है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो उसका ऑन इट्स मिरर इमेज द मिरर इमेज मस्ट बी अ डिफरेंट मॉलिक्यूल. ओके, सो जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा,
तो हमें क्या विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, दोनों में से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो देखिए अगर दो दो कंपाउंड आपस में क्या है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। चलिए मैं से कोई जैसे मैं कोई दो कंपाउंड ले लेता हूँ जो क्या हो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो। ओके, अब यहाँ पास मैं मिरर लगा देता हूँ और इसका एक मिरर इमेज बना लेते हैं हम लोग। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा मिरर इमेज होगी। अब दोनों क्या है बोथ आर क्या है नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ओके, अब जब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो हमें हमें देखिए कोई फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज द मिरर इमेज मस्ट बी अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। ओके, सो जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा, है ना। तो देखिए दोनों दोनों मिरर इमेज क्या है आपस में डिफरेंट है ना, है ना। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो डिफरेंट ही होंगे, है ना। अगर सुपर इम्पोजिबल होता तो दोनों क्या होता आइडेंटिकल होता मतलब सेम होता। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑलवेज प्रूव दैट द गिवन कंपाउंड इज कायरल। ओके, अगर कोई कंपाउंड क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके अगर वो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या होगा कायरल होगा। ओके, ये तो कंफर्म है, सही बात है। उसके बाद बोला है बट इट्स absence डज नॉट प्रूव दैट द कंपाउंड इज ए कायरल। मतलब जिस जो क्या है ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा तो क्या वो प्रूव करता है कि वो कंपाउंड जो है वो ए कायरल होगा। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है हमारा ए कायरल होता है ना। तो ये भी क्या है हमारा सही है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है कायरल होता है ना। और ऑप्टिकली इनएक्टिव ए कायरल हो हमेशा ये जरूरी नहीं है ना। तो बट इट्स क्या बोला है बट इट्स absence डज नॉट प्रूव दैट द कंपाउंड इज ए कायरल। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो उससे ये प्रूव नहीं होता कि वो ए कायरल होगा। तो ये भी सही है। क्यों ये सही है, क्योंकि क्यों सही है, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को वाल्डेन इन्वर्जन बताया था, है ना। जैसे नाइट्रोजन में, है ना, नाइट्रोजन में क्या होता है वाल्डेन इन्वर्जन होता है अमीन में। R1 ले लो R2 ले लो, ये सभी क्या है डिफरेंट कंपाउंड है ना। और R3, है ना। तो ये क्या है कायरल है। ओके, ये क्या है हमारा कायरल है, लेकिन ये क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना। ओके, ये क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा कि absence डज नॉट प्रूव दैट द कंपाउंड इज ए कायरल। मतलब देखिए इसमें तो इसमें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट है लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल क्या है हमारा कायरल है ना। तो ये भी हमारा करेक्ट है ना। सो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी क्या को बोला गया है दो स्टेटमेंट दिया गया है हमें। ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन जस्ट वन कायरल कार्बन एटम इज ऑलवेज कायरल एंड हैज ऑप्टिकली एक्टिव। उसके बाद सेकंड में बोला गया है प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज एब्सोल्यूट नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, सो ये हमें बताना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्टली ट्राई टू डू योर सेल्फ।
Okay, so I hope you find the right answer. Okay, so now let's do this question. So first statement, a molecule that contains just one chiron carbon, मतलब कोई कोई मॉलिक्यूल है ना, जैसे हम कोई मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसमें क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। फ्लोरीन। ओके, अब ये क्या है हमारा कायरल कार्बन। सो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन जस्ट वन कायरल कार्बन एटम इज ऑलवेज कायरल हैंस ऑप्टिकली एक्टिव। तो यह क्या होगा, यह हमेशा क्या होगा, कायरल होगा। ओके, ऑलवेज कायरल होगा और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज एब्सोल्यूट कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये बोल रहा है कि कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तभी वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अलीन में देखा है ना, अलीन जो होता है कम्युलेटेड सिस्टम, ओके, ये क्या है हमारा अलीन। इसमें क्या है, कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके, ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो वही ऑप्टिकली एक्टिव हो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है तो सुपर इम्पॉसिबल होता है, सुपर इम्पॉसिबल कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए यहाँ पास मैंने आप लोग को आंसर की प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग आंसर किसे मैच कर लीजिए। फर्स्ट का ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट का डी, सेकंड का करेक्ट ऑप्शन सी, थर्ड का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, सेवन क्वेश्चन का डी होगा, एट का डी होगा, नाइन का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा और टेन का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, सो मैंने फर्स्ट से लेकर 10 क्वेश्चन आपको दिए थे, है ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी स्टीरियो केमिस्ट्री की असाइनमेंट जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ। और हाँ, अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी में आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, तो आप कमेंट करिए, है ना, कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।